اپنے معزز مہمانوں سے آپ کا تعارف بھی کروا دوں. ہمیں جناب وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا پرویز رشید صاحب. اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب تعارف کے محتاج نہیں, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. امتیاز عالم صاحب سینئر صحافی ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں موجود ہوں گے. میں سب سے پہلے سر آپ کی طرف آتا ہوں پرویز رشید صاحب. یہ تمام چیزیں جو عمران خان صاحب یا طارق قادری صاحب ایک دن پہلے آغاز کر چکے ہیں ایک نئی تحریک کا, وہ عوام کو ابھارنا چاہتے ہیں. بقول ان کے ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کے خلاف, اور وہ ظالم جو ہیں وہ آپ ہیں, آپ کو گردانتے ہیں, آپ کی گورنمنٹ کو گردانتے ہیں. سر آپ نے بھی اس کے کاؤنٹر میں ایک موومنٹ ایسا لگتا ہے کہ شروع کر دی, جس طرح سے پشاور میں آج جلسہ ہوا امیر مقام صاحب. تو آپ اس طرح سے اب چلیں گے 2018 کے الیکشن تک, ادھر یہ جلسہ ادھر آپ جلسہ, ادھر یہ ریلی ادھر آپ ریلی, کیا یہ اسٹریٹجی ہے اب نیکسٹ آپ کی؟ پاکستان مسلم لیگ اور نواز شریف صاحب پاکستان کے عوام کو دکھ, جی درد اور تکلیف کو ختم کرنا چاہتے ہیں جن میں پاکستان مبتلا ہو چکا ہے. وہ دکھ درد تکلیف کیا ہے؟ پاکستان میں دہشت گردی ہے, ہمیں اسے ختم کر کے پاکستان کو پرامن بنانا ہے اور محفوظ بنانا ہے. پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے, پاکستان کو لوڈ شیڈنگ ختم کر کے روشن پاکستان میں تبدیل کرنا ہے. پاکستان میں بے روزگاری ہے, پاکستان کو معاشی طور پر اتنا مضبوط بنانا ہے اور اکنامک ایکٹیویٹی کو اتنا تیز کرنا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کی تلاش کے لیے پاکستان سے باہر در بدر نہ ہونا پڑے. ان 3 سالوں میں ہم نے اپنے ایجنڈے کے ان تینوں پوائنٹ پر محنت کی ہے اور اس کے مثبت نتائج پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہیں. 2013 کے مقابلے میں 2016 کا پاکستان زیادہ پرامن ہے, زیادہ محفوظ ہے. مزید کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے ہم کمر بستہ ہیں. آج پاکستان میں 10,400 میگا واٹ کے بجلی کے کارخانے تیزی سے اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی 2017 دسمبر جی تک یہ کارخانے بجلی پیدا کرنی شروع کر دیں گے, جس سے نہ صرف ہماری بجلی کی کمی پوری ہو جائے گی, لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, بلکہ ہمارے پاس کچھ وافر بجلی بھی ہوگی. بجلی کے آنے سے گھروں میں لوگوں کو سکون ملے گا, ان کا پنکھا گرمی میں چلے گا, ان کا بلب روشن رہے گا, اور کارخانے جو ہیں ان کا پہیہ بھی سستی بجلی سے زیادہ تیزی سے گھومے گا, جس سے اچھی روزگار بات ہے, میں بہت اضافہ اچھی بات ہوگا. ہے. تو ہمارا ایجنڈا یہ ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ کاؤنٹر ہے تحریک انصاف کے جلسوں کا, ان کی ریلیوں کا, یا عوامی تحریک کی ریلیوں کا؟ آپ سمجھتے ہیں جو آپ نے جو باتیں کی یہ کاؤنٹر ہے, آپ ڈیلیور جی کریں بالکل, گے اور ان کی ریلیاں کاؤنٹر ہوتی جائیں گی؟ ہم ٹھیک جنریٹر ہے, کی لیکن سیاست سر مسئلہ کرتے یہ ہے نا ہیں. کہ ان کی شکایت یہ ہے, عوام کی شکایت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے. اگر آپ بات کرتے ہیں مہنگائی کی تو مہنگائی بڑی ہے, قرض آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ لیے گئے ہیں, لوڈ شیڈنگ کے اوپر اگر آپ قابو پا رہے ہیں تو شارٹ فال بھی اس طرح بڑھتا جا رہا ہے, جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے, ساتھ ساتھ کرپشن وہ اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, وہ بھی اس طرح نہیں رک پا رہی ہے. احتساب لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو نیب کو آس کب کر دیا جاتا ہے سر, نیب کے اور پر کاٹ دیے جاتے ہیں. تو پھر یہ چیزیں بھی تو سامنے ہیں, تو عوام تو نکلیں گے باہر. جی میں نے آپ سے عرض کیا, جہاں تک عوام کے باہر نکلنے کا تعلق ہے, عوام ایک دن بھی باہر نہیں نکلے. ان 3 سالوں میں عوام کو ہم نے ایک دن اچھا بھی کسی حکومت کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے, اپنی تکلیفوں کے حوالے سے ضرور تکلیفیں بیان کرنے کے لیے لوگ یا لوگوں کے کچھ گروپس جیسے ڈاکٹرز ہیں, ٹیچر ہیں, وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں. اور تمام جمہوری کسان ہیں. ملکوں میں جی بالکل کسان ہیں, جمہوری ملکوں میں یہ ہوتا ہے, اور پھر ان کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے اور وہ اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں. یہ جو جی ریلیاں نکالنا ہے, لیکن دھرنے سر یہ جو دینا ہے, کے پی کے لوگ نکلے ہوئے ہیں باہر, میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے, یہ کون, یہ عوام نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو لوگ نکلے ہوئے ہیں سر آج, اور مختلف شہروں میں نکلے ہوئے ہیں. یہ تو تو ان کو آپ عوام نہیں مانتے کیا؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو انجینئرڈ ہے نا, یہ تو ایک جی جلسہ جلوس کا اہتمام کیا گیا. اگر یہ عوام ہیں تو جو مقام کے جلسے میں تھے جی وہ بھی عوام ہیں, اور ان کی تعداد بھی دیکھ لیں کہ وہ کتنی تھی. کیا وہ کم ہیں ان سے؟ وہ ان سے زیادہ ہیں. اب عوام کس کے ساتھ زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جلسوں سے, جلوسوں سے, ریلیوں سے ہوگا, یلغار کی سیاست سے ہوگا, یا جی انتخابی طریقے سے ہوگا. تو ابھی پاکستان کے عوام نے آزاد ٹھیک ہے. کشمیر میں اپنے ووٹ کے ذریعے سے بتایا ہے کہ وہ کس کے الزام کو تسلیم کرتے ہیں اور کس پر اعتماد کرتے ہیں. خان صاحب اپنی پوری 4 سیٹ لے کے آزاد کشمیر گئے تھے, ان کو 1 سیٹ آزاد کشمیر سے نہیں ملی. جب سے ہم نے آزاد کشمیر میں بھی الیکشن جیتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے بلدیاتی الیکشن بھی جیتے ہیں, اور جی 6 مہینے کے بعد پاکستان میں انتخابی
सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। 2017 इंतखाबात की सरगर्मियों का साल है जो 6 महीने बाद शुरू होने वाला है। तो खान साहब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो कुछ करना चाहते हैं वो 2017 के साल में अपना पैगाम लोगों के पास लेकर जा सकते हैं। 2018 में लोगों को मौका मिल जाएगा, लोग हमारे करने के साथ होंगे तो हमें वोट कर देंगे, अगर खान साहब के धरने के साथ होंगे तो खान साहब के धरने को वोट कर देंगे। हमें सबको उसका इंतजार करना चाहिए। तो जो अमीर मकाम साहब ने जिक्र किया उसका मैं सिर्फ छू के गुजर जाऊंगा, फिर और बड़े मेजर इश्यूज हैं सर उस पर भी बात करेंगे। जो मकाम साहब के पास लोग थे, क्या आपको लगता है वो इंजीनियर्ड नहीं थे? ये जो ये लोग खान साहब के हैं ये सब इंजीनियर्ड हैं, ये सब बुलाए गए हैं ट्रकों में भर के? देखिए, अमीर मकाम साहब जो हैं उनके पास ना तो कोई खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामी मशीनरी है, ना उनके पास वहाँ पे कोई MNS MPS की ताकत है, ना उनका कोई बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा मकाम या कोई बहुत बड़ा उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वो शुमार होते हैं। वो हमारे एक मकामी क़यादत करते हैं। मकामी कायद के कहने पर अगर इतने लोग जमा हो जाते हैं तो ये तो पूरी तहरीक इंसाफ की क़यादत है जो आज ट्रक पे खड़ी है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून की सियासत जनरेटर की सियासत है, यानी जनरेट करना, और हमने जनरेट करके दिखाया है। इनकी सियासत जनरेटर की नहीं है, जनरेशन की सियासत नहीं है, इनकी सियासत कंटेनर की सियासत है। ये कंटेन करते हैं चीजों को। तो ये मुकाबला जनरेट करने वालों में और कंटेन करने वालों में होगा। देख लेते हैं कि अवाम जनरेट करने वालों का साथ देंगे या कंटेन करने वालों का साथ देंगे। बिल्कुल ठीक है सर, अगले इशू पर आते हैं। और ये जनरेट करना या कंटेन करना, ये जो दूसरा तबका है या जो आपके मुखालिफिन है वो और तरह की बहस करते हैं। वो कहते हैं कि जी आप सिर्फ एक खास तबके के एक बल्कि खास किस्म की आप जो है वो डेवलपमेंट करते हैं जिसमें सिर्फ रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होता है, उसको इतनी अहमियत दूसरा तबका नहीं देता। खैर आगे बढ़ते हैं सर। ये TORs का मामला, तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज भी कर रही है, सड़कों पर है, एहतसाब की बात भी करती है, लेकिन वो TORs कमेटी में बैठने भी जा रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहले मैं जिस बात को आपने कहा कि हम छोड़ देते हैं उसको भी मैं मुख्तसर जरूर एड्रेस करना चाहूंगा। देखिए, जब तक किसी भी दुनिया के मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद क्या है? अगर आपके पास तवानाई नहीं है, अगर आपके पास गैस नहीं है, अगर आपके पास मवासलात का अच्छा निज़ाम नहीं है, तो आपकी मईशत कैसे तरक्की करेगी? अमेरिका हो, जर्मनी हो, चीन हो, जापान हो, सब ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, जिसके नतीजे में उनकी मईशत इतनी बड़ी हो गई और उनके वसाइल इतने बढ़ गए कि फिर वो अपने लोगों के लिए अच्छे स्कूल भी देते हैं, अच्छे अस्पताल भी देते हैं, क्योंकि खर्च करने के लिए पैसा मौजूद है। जहां तक कर्जों का तल्लक है तो हमने तो IMF के प्रोग्राम को भी अब अलविदा कहने का ऐलान कर दिया है। जो कर्जे माजी में लिए गए थे हमने सर वो इतना कर्ज ले लिया तो अब तो गुंजाइश ही नहीं बची। तो फिर कशकोल आपने वापस कर दिया, मतलब इतना कर्ज ले लिया, तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज आपने लिया और कशकोल फिर वापस कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। नहीं जनाब, ये आप फिगर्स पे अगर चले जाएंगे तो कर्ज जो थे, जो माजी की हुकूमतों ने कर्ज लिए हुए थे, उनकी किस्तें अदा करने के लिए कर्जों को लिया गया। हमने कोई किसी प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज नहीं लिए। जितने पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लग रहे हैं, खा वो बिजली के हैं, खा इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, वो इन्वेस्टमेंट है, कोई कर्जा नहीं है उसमें। ग्वादर की बंदरगाह अगर बन रही है, खंजराब से लेके कराची तक और खंजराब से लेके ग्वादर तक अगर मोटरवेज बन रही हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। 10,400 मेगावाट के बिजली के जो कारखाने लग रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनमें से कोई कर्जा नहीं है। लिहाजा ये तासर ठीक नहीं है। जहां तक अच्छी बात आप कह रहे हैं जी, दूसरी लेकिन बात सर वो ये टैक्स नेट को बढ़ा के भी पूरा किया जा सकता था, ये जरूरी तो नहीं था कि आप कर्जा लेके कर्जा चुकाते। ठीक है, आप फरमाइए। टैक्स हमने जो माजी में टैक्स जमा किए जाते थे उससे 3 गुना टैक्स इस दफा हमने ज्यादा जमा किए हैं, लिहाजा हमने उसको भी बढ़ाया है। लेकिन टैक्स बढ़ाने की भी एक कैपेसिटी होती है और उसका भी ये भी एक वक्त दरकार होता है हमारा, उसमें भी हम सर फहरिस्त हैं टैक्स जमा करने में भी। इस दफा 3,000 अरब रुपए के टैक्स जमा किए गए हैं, जबकि माजी में ये 1700-1800 से ज्यादा कभी आगे नहीं बढ़े थे। तो वो फिगर भी हमारी सबसे बड़ी फिगर है। ठीक है, लेकिन जहां तक आप मेरी बात सुनिए, जहां तक आप TORs, लेकिन टारगेट सर फिर भी पूरा नहीं हो सका ना फिस्कल ईयर का। जी मेरी बात सुनिए। जो TORs की बात आप कर रहे हैं, जो आप TORs की बात फरमा रहे हैं, तो देखिए एहतसाब के लिए ये इलेक्शन कमीशन के पास भी चले गए, एहतसाब के लिए इन्होंने नैब में भी दरखास्त दे दी,
एहतसाब के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का इरादा रखते हैं। तो अगर इन्हें इन अदारों पर एतमाद है तभी ये इनके पास गए हैं, और अगर आपको एतमाद है और इन अदारों के पास आप चले गए हैं तो फिर सड़कों पर आने का आपका जवाब क्या है? और अगर आप सड़कों पर आ गए हैं, इन अदारों पर आपको एतमाद नहीं है, तो फिर इन अदारों के पास आप दरखास्तें लेकर गए क्यों थे? ये तो एक तजाद है जो इनकी सियासत में मौजूद है। हम आज भी इस चीज पर आमादा हैं कि जिस तरह इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी बनी है और वो अपना काम कर रही है और खान साहब की बात भी उसमें अपना किरदार अदा कर रही है, इसी तरीके से आइए पार्लियामेंट के अंदर सारी पार्लिमानी पार्टियां मिलकर एक एहतसाब का नया मसवदा ले आते हैं मुत्तफिका तौर पर, जिस पे आप भी राजी हों, हम भी राजी हों, बाकी जमातें भी राजी हों, जिसमें एहतसाब के नाम पर सियासत न की जाए, एहतसाब के नाम पर किसी को सियासत में इंतकाम का निशाना न बनाया जाए, और फिर देख लेते हैं कि किसका दामन साफ है और किसका दामन दागदार है। और मैं आपके प्रोग्राम में एक और चैलेंज कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब का पहला दौरे हुकूमत हो, नवाज शरीफ साहब का दूसरा दौरे हुकूमत हो, नवाज शरीफ साहब का ये तीसरा दौरे हुकूमत हो, किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में इनसे कहिए कि बताएं कि किस में से कमीशन ली गई है, किस प्रोजेक्ट में किकबैक ली गई है, और आइए उसको ले जाते हैं दुनिया की किसी भी एहतसाब के महकमे के पास, और कोई एक इन्होंने आज तक कभी इल्जाम नहीं लगाया, आज तक इनकी तरफ से भी किसी प्रोजेक्ट के बारे में कमीशन का और किकबैक का इल्जाम नहीं है। लेकिन जहाँ पे कमीशन के इल्जामात मौजूद हैं, जहाँ किकबैक्स के इल्जामात मौजूद हैं, सर वहाँ पे उस तरफ ये मुंह नहीं करते। सर नैब की रिपोर्ट है जहां पर 150 लोगों का जिक्र है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन है। बाद में नैब के अख्तियारात को उसके पर काटने के लिए तमाम असेंबली में इकट्ठे हो गए। सर नैब ने निशानदेही की थी इस चीज की, आपका चैलेंज बजा, लेकिन नैब तो खुद भी इस चीज की निशानदेही कर चुका हुआ है। जनाबे वाला, वो 150 लोगों की जो फरिश्त बनी थी उसको आप मुलाहिजा फरमा लीजिए, ये उस दौर में बनी थी जब मुशर्रफ साहब ने उसको इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन मुशर्रफ साहब भी अपने पूरे दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा पर कोई इल्जाम ना साबित कर सके, ना मुकदमा चला सके, लेकिन उसके जवाब में बहुत से लोग जिनके बैंक अकाउंट्स में से पैसे निकले, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पैसे वापस आके जमा कराए, उनका तल्लुक एक और सियासी जमात से है और एक और सूबे से है, और खान साहब को आज तक अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दी कि उस सूबे में जाके कभी इस तरह की तहरीक चलाएं। ठीक है, इस पर परवेज साहब मैं यहाँ पर रोकूंगा चूंकि मुझे ब्रेक लेनी है, और बल्कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और जो बातें आपने की हैं। हमारे जो मोअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद हैं, इम्तियाज़ आलम साहब और जनरल साहब मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कुछ उस पर उनका तबसरा हम जरूर हासिल करें। और खास तौर पे ये बात जो परवेज रशीद साहब ने की है कि अगर आप अदालतों का दरवाजा भी खटका रहे हैं, रेफरेंस भी दायर कर रहे हैं, पर सड़कों पर आपको आने की फिलहाल जरूरत क्या सूदमंद साबित होगा। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।